Welcome to the second act of the Ram Leela. Yesterday we watched as Sri Ram, Mother Sita and Lakshman left Ayodhya and journeyed towards the Ganges. After meeting with Kevat, they finally reached the forests of Dankaranya. As Sri Ram, Ma Sita and Lakshman journeyed through the dense forests, they were welcomed by great sages and rishi. At every hermitage, Ram bowed in reverence, receiving wisdom and blessings. Lakshman remained watchful, ensuring their safety, while Ma Sita listened with devotion. Their journey took them through serene groves and perilous lands. Yet everywhere they went, their presence brought hope to the sages, knowing that Dharma was in the hands of the divine. Guharaj requested that he remain with Ram. They proceeded from there until at Prayag they reached the ashram of Maharshi Bharadwaj. Bharadwaj was delighted to have darshan of the Lord. He hosted him for the night. Next morning, Ram said, "What path should I take?" This question should only be asked to somebody who is selfless. Bharadwaj said, "I will send 4 disciples with you." They took him across, now from the Ganga across the Yamuna, and said, "Maharaj, you can continue this way." So Ram is going ahead, then Sita, and then Lakshman. Prabhu Padrekha बीच बिच सीता धरती चरण मग चलती सबीता. Sita is careful that my feet should not fall where Ram's footmarks are. Siya Ram pad ank baraye lakhan chalahi mag dahin baye. And Lakshman is walking behind Sita, ensuring that he doesn't step on the footmarks of Ram and Sita. आइए रघुकुल नंदन, मैंने अपने तप से आपकी आगमन की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। महर्षि, आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। कृपया हमें आशीर्वाद दें। हे राम, इस वन में अनेक राक्षस उत्पात मचा रहे हैं। आपको दंडकारण्य में रहकर धर्म की रक्षा करनी होगी। महर्षि, वन में कोई सुरक्षित स्थान हो तो बताइए, जहां हम निवास कर सकें। महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर जाइए, वे आपका उचित मार्गदर्शन करेंगे। हे राम, आपके वनवास का उद्देश्य केवल तप नहीं बल्कि धर्म की रक्षा भी है। महर्षि अगस्त्य आपको दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। हे राम, यह धनुष और ये दिव्य अस्त्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इनका सदुपयोग धर्म की रक्षा हेतु कीजिए। महर्षि, आपका यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे।
As Sri Ram, Ma Sita, and Lakshman settled in Dandakaranya, the forest welcomed them with its lush greenery and flowing rivers. Seeking a peaceful spot, Lakshman built a thatched hut with bamboo and leaves, ensuring Sita's comfort. Amidst the whispering trees and sacred streams, their exile turned into a sanctuary. Ram and Lakshman protected sages from lurking demons, while Sita brought warmth and grace to their humble home. In nature's embrace, they found peace, duty, and devotion. Peace in the forest was not to last. Darkness stirred in the distance, carried on the winds of fate. Surpanaka, the sister of the mighty Ravan, roamed these lands, drawn by tales of Ram's strength and beauty. Restless and curious, she wandered closer, unaware that her encounter with Ram would set into motion a chain of events that would shake the very foundations of Lanka. As she approached the humble dwelling of Ram and Sita, desire and arrogance burned within her. What began as an infatuation would soon turn to rage, leading to a moment that would alter the course of destiny forever. ये स्थान कितना सुंदर है। ये कौन वीर हैं जो इतने तेजस्वी लगते हैं? हे वीर, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ, और यह मेरी धर्मपत्नी सीता और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम वनवास के लिए यहाँ आए हैं। हे राम, तुम तो अत्यंत रूपवान और तेजस्वी हो। ये नाजुक स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं। मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं सदैव साथ रहूंगी। देवी, मैं पहले से ही विवाहित हूँ और मेरी पत्नी ही मेरा सर्वस्व है। यदि तुम विवाह करना चाहती हो तो मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं कर लेते? हे देवी, मैं तो अपने स्वामी का सेवक मात्र हूं और मैं विवाह के योग्य नहीं हूं। यदि तुम्हें विवाह करना ही है तो भैया राम के पास जाओ, वही तुम्हारे योग्य हैं। तुम सब मेरा अपमान कर रहे हो। इस सीता के कारण ही राम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे। इसे मैं अभी समाप्त कर देती हूँ। किया है। मैं लंका जाकर अपने भैया रावण को सब बताऊंगी। वो इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। लक्ष्मण, यह घटना अच्छे संकेत नहीं दे रही। हमें सावधान रहना होगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है प्रभु। Surpankhā in the last avatar, when Krishna had come as Ram, Surpankhā had gotten enchanted. So she had a mixture of worldly desire and divine bhakti. Because Ravan had said, go and see, select whomever you like, I will get you married to him. Ravan knew that his sister had a very rowdy nature. So to
tame her down, he said, "You go and select." Surpankha went around the whole world and did not like anybody. And then she saw Ram. And she said, "Manmana kachu tumahi nihari." You are all right, will do. Nothing special, but will do. So it shows that she had some spiritual power. If she did not, then in accordance with Jaki Rahi Bhavana Jaisi Prabhu Murati Dekhi Tan Taisi, she would not have found Ram attractive. But she did. And she said, "I wish to marry you." Now Ram said, "In this avatar I have come as Maryada Purushottam. There is not going to be any ghapad shapad." And the Leela had to move ahead, so he asked Lakshman to chop off her nose and ears. But the same Surpankha, she came again as Kubja, and Sri Krishna made amends. After Surpanaka went back to Lanka and told her brother Ravan of what had transpired, Ravan and Marich set out to take revenge for the dishonor of their sister. Marich disguised himself as a golden deer to lure Sita. स्वामी देखिए, यह कैसा अद्भुत मृग है। मैं इसे अपने आश्रम में पालना चाहती हूँ। कृपया इसे पकड़ लाइए। सीते, यह कोई मायावी राक्षस भी हो सकता है। स्वामी, मैं यह मृग चाहती हूँ। कृपया इसे पकड़ लाइए। हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। लक्ष्मण, सुना आपने? प्रभु संकट में हैं, तुरंत जाइए। माता, यह किसी राक्षस की माया भी हो सकती है। भैया अजय हैं, उन्हें कोई संकट नहीं हो सकता। लक्ष्मण, यदि तुम प्रभु की सहायता के लिए नहीं गए तो मैं समझूंगी कि तुम्हारे मन में कोई और ही उद्देश्य है। माता, मैं राम भैया की आज्ञा के विरुद्ध कहीं नहीं जाना चाहता, परंतु यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं जाता हूँ। किंतु एक बात का ध्यान रखें, मैं इस कुटिया की रक्षा के लिए एक रेखा खींचता हूँ। माता, इस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहिएगा। कोई भी अनजान व्यक्ति इस रेखा को पार नहीं कर सकता, परंतु यदि आप स्वयं इसे पार करेंगी तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है लक्ष्मण, किंतु शीघ्र लौटना। Ravan was waiting for this opportunity, and as soon as Lakshman left, Ravan appeared in the guise of a sage. देवी भिक्षाम देहि। देवी मुझे भिक्षा दो। देवी भिक्षाम देहि। हे साधु, कृपया द्वार पर प्रतीक्षा करें। मेरे स्वामी शीघ्र ही लौटेंगे। देवी, क्या यह उचित है कि एक साधु द्वार पर खड़ा रहे और गृह लक्ष्मी उसे अन्न जल ना दे? ये तो धर्म के विरुद्ध है। मुझे लक्ष्मण की कही बात याद है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए भिक्षा देना भी मेरा कर्तव्य है। स्वामी, हे राम, मुझे बचाइए।
After Ravan abducted Ma Sita, Sri Ram and Lakshman searched the forests in desperation, calling out her name. Their quest led them to the dying Jatayu, who, with his last breath, revealed how he fought Ravan and saw Sita taken toward Lanka. Ram, overcome with grief, performed Jatayu's last rites, honoring his sacrifice. As they journeyed further, they encountered the demon Kabanda, whom Ram freed from a curse. In gratitude, Kabanda advised them to seek help from Sugriv, the exiled Vanar king in Kishkinda. Before reaching Sugriv, they arrived at the hermitage of Shabri, a devoted ascetic who had waited years for Ram's arrival. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे प्रभु राम मेरे द्वार अवश्य आएंगे। मेरे प्रभु राम मेरे द्वार अवश्य आएंगे। मेरे गुरु ऋषि मतंग ने बताया है। मेरे प्रभु राम के कोमल चरणों में कहीं कोई कंकड़ या कांटा न चुभ जाए, इसलिए फूल बिछा रही हूँ। ठहरिए, आप फिर आ गए मेरे फूल रोंदने को। आप कौन हैं? मैं राम हूँ और ये है मेरा अनुज लक्ष्मण। मेरे राम आ गए। मैंने अपने नैनों के दीप कब से जला रखे हैं। हे रघुनंदन, आपके दर्शन मात्र से मेरी तपस्या सफल हो गई। श्री राम, मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। उठो माते। अरे माता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपके स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, मैं फल लाती हूँ। खाओ लक्ष्मण। ऐसा लग रहा है जैसे माता कौशल्या अपने हाथों से खिला रही हैं। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल रहे होंगे। जी भैया। ये सब मेरे गुरुदेव महामुनि मतंग की शक्ति का प्रभाव है, इसलिए फल मीठे हैं। देखो लक्ष्मण, जब मनुष्य स्वार्थ की सीमा को लांघकर परमार्थ की भूमि में तपस्या करता है तो उसकी शक्ति में कितना तेज होता है। Sri Ram gives Ma Shabri the knowledge of how to practice devotion. He elaborates the 9 types of devotion in details. प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञाना।
परम सुखदाता, चित्त लगा सुन मेरी गाथा। तज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्म विष्णु शिव सम गुरुदेवा। हो निष्कपट मेरा गुण गायन, करे सो पावे राम रसायन। दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर। इंद्रिय वश कर चरित संभालो, सद्गुण धार धर्म नित पालो। सारा जगत राम मैं जानो, मुझसे अधिक संतों को मानो। एक संतोष सकल सुख लाए, सपने हो गिनो न दोष पराए। सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, मुझ पर रखो भरोसा भारी। कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखना मन में। नवधा भक्ति हृदय जो राखें, मेरी कृपा का फल वो चाहे। आपके मार्गदर्शन के अनुसार अब हम महाराज सुग्रीव एवं महाबली हनुमान को खोजने के लिए ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। माता, अब हमें आप जाने की आज्ञा दीजिए। जैसे आपकी इच्छा प्रभु। So Shabri started staying in the ashram of Matang Rishi. She used to do the Guru Seva in whatever way she understood. But Matan was old and he was soon to depart. Shabri said, Gurudev, you are going to leave. What will happen to me? Matang Rishi said, Shabri, as long as you are in this ashram, nobody can touch you. Just stay here. You will be more fortunate than I. Because Ram is going to descend and do his leelas. He will come right here and give you darshan. Shabri had full faith in her Guru's words. Gurudev has said he is going to come here and give darshan. Shabri believed it. Every day she used to think, will Ram come? She used to clean up the path to the hut. She used to gather the fruits and berries. She would decorate the hut. If Ram comes, I will make him sit here. No, this is not all right. I'll make him sit here. No, this is not all right. This was her daily chintan. So Ram, when he reached there, instead of going to the huts of the rishis and munis around, he went straight to Shabari's hut. Now 40 years had gone by. Shabari waited for 40 years. And when Ram reached, he went into bhav. She came running to welcome Ram and Lakshman. She brought them into the hut. And she said, Prabhu, I don't know any bhakti. So she made Ram sit up and she washed Ram's feet with her tears and then wiped them with her hair.
And we all know that she took the berries, because that's what you have in the forest. And she started offering those berries. So she's tasting them and then offering them to Ram. And Ram is relishing the berries. I have never eaten anything so sweet in my life. So you can ask Ram that why have you never eaten anything so sweet as these berries? Ram says, I don't care for the taste. I care for the bhav. भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है. भाव बिन सब कुछ दे डाले तो मैं कभी लेता नहीं. भाव वाले भक्त का एक पुष्प भी स्वीकार है. It is the bhav with which he is offering. Ram then instructed Shabari on Navadha Bhakti. So there is one Navadha Bhakti in Bhagavad that Prahlad Maharaj recites. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedana. There is another Navadha Bhakti that Ram teaches to Shabari. He said, look Shabari, the first Bhakti is Satsang, Sadhu Sang. When you associate with the holy personalities, your bhakti begins. And the second bhakti is Katha Shravan. The Katha is so powerful, it creates Shraddha in the Rati automatically. And the third bhakti is Guru Pad Pankaj Seva, to serve the Guru. The fourth bhakti, Shabari, is to do the gungan of the Lord. And the fifth bhakti is to do Nam Jap and Nam Smaran. The sixth bhakti is Vairagya and control of the senses. You can only take the mind to Bhagavan if you withdraw it from the world. So Vairagya is this bhakti. And then the next bhakti is to learn to see Bhagavan everywhere. Then the rag and the dvesh will finish. And the next bhakti is santosh, contentment. To be satisfied with what you have, so this high stops. Count your blessings and be happy. And finally, the ninth bhakti is saralta, simplicity. Not cunningness, not deceit. Saral swabhava namman kutilai, and full faith in the protection of the Lord. Ram said, I wish to ask you a question now. I am searching for Sita. Can you please guide me? How will I reach Sita? Shabari said, Prabhu, you know everything and you are still asking me. Then nevertheless, you go southward from here and you will reach the kingdom of Kishkinda. There, you will find a hill, a mountain called Rishyamukh. There resides Sugriv, Vanar Raj. You make friendship with him. With his help, you will be able to search for Sita. So Ram said, all right then, I'm going to depart. Shabari said, Maharaj, I waited for you for 40 years. Now again you are going to depart. Before you depart, I have to depart. So Ram gave her permission. So in the presence of Ram, Shabari was such a big tapasvini, a yogini. She created the yogagni from her body, decimated the body and left for the divine abode. So Ram now proceeds towards Rishyamukh Parvat.
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक हाल जारी। मेरा मन इन अपरिचित दृश्यों के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा है? भैया, लगता है यही वो दोनों पर्वत शिखर हैं। परंतु हम पहले किस पे चढ़े? भैया, आगे जाने वाला मार्ग दुर्गम लगता है। वो देखो लक्ष्मण, कोई आ रहा है। देखने में तो सज्जन पुरुष जान पड़ता है। चलो इन्हीं से मार्ग पूछते हैं। देखने में तो पंडित लगते हैं, परंतु इस दुर्गम स्थल पर ये कर क्या रहे हैं? भैया, आप सावधानी से बात कीजिएगा। मुझे उनका ये वास्तविक रूप नहीं लग रहा है। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देव। कल्याणमस्तु। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? आपका अनुमान सही है पंडित जी। हम ऋषिमुख पर्वत जाने वाला मार्ग ढूंढ रहे हैं। आप कृपा करके हमें पर्वत का मार्ग बता सकते हैं? किम प्रयोजनम? आपका लक्ष्य क्या है? आप ऋषिवर कौन हैं? कहाँ से आए हैं और क्या चाहते हैं? जिस प्रकार आप हमें जानने के लिए जिज्ञासु हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं कि आप वही हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यही कि हमारे छोटे से प्रश्नों का उत्तर ना देकर रोषम करोति दोषम। तपस्वी, क्रोध त्याग कर केवल इतना बता दें कि ऋषिमुख पर्वत पर आपको किसके पास जाना है? आप केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। आप जा सकते हैं, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। तुम्हारी बात गलत नहीं है लक्ष्मण, परंतु इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये परम विद्वान जान पड़ते हैं। इनसे मिलने से हमारा हित ही होगा। हे पंडित, हमें महाराज सुग्रीव से मिलना है। महाराज सुग्रीव किसी से नहीं मिलते। हम उनके कुल पुरोहित हैं, पंडित केसरी नंदन। आप उनसे क्यों मिलना चाहते हैं और ऋषिमुख पर्वत का पता आपको किसने दिया? हमें माता शबरी ने ये मार्ग बताया है। महातपस्विनी शबरी? किम अभिप्रायम? भैया, ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं, उत्तर देना तो जानते ही नहीं। मेरा अनुमान है इन पंडित जी महाराज का तो नाम प्रश्नानंद महाराज होना चाहिए। इनके गुरुदेव ने इनको उत्तर देना तो सिखाया ही नहीं, और आपको केवल क्रोध करना ही सिखाया है। लेकिन आप धीर गंभीर हैं। कृपा करके आपके यहाँ आने का महत्व प्रकट करें। बात यह है, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। यदि आपके कथनानुसार हमारी सुग्रीव से भेंट नहीं हो सकी, तो कृपा करके उनके मंत्री पवनपुत्र हनुमान से हमारी भेंट करवा दीजिए। आप हनुमान से मिलेंगे? यदि आप अपना वास्तविक परिचय बता दें तो हम हनुमान को इसी क्षण यहाँ बुला सकते हैं। जैसे कि हनुमान इनकी पोथी में बंद हैं भैया। अवश्य, आप अपना परिचय तो दीजिए। हनुमान मेरी चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छा तो सुनिए, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं और वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं।
प्रभु श्री राम, आप स्वयं? मैं ही हूँ हनुमान। प्रभु, अपने भक्त को स्वीकार करें। जय श्री राम। As described by Mahashabri, Sri Ram and Lakshman reached Rishyamukh mountain, where the exiled Vanar king, Sugriv, resided in hiding. Sensing the arrival of two mighty warriors, Sugriv's trusted minister Hanuman disguised himself as a humble ascetic and approached them. The moment he laid eyes on Ram, his heart recognized the divine presence before him. With deep reverence, Hanuman bowed and introduced himself, his words filled with wisdom and devotion. When Ram spoke, Hanuman was overwhelmed with joy and surrender, realizing he had found his eternal master. Shedding his disguise, he carried Ram and Lakshman on his shoulders to meet Sugriv, thus beginning a sacred alliance that would soon shape the fate of the world. हे हनुमान, ये कौन है? राजन, ये श्री राम हैं, अयोध्या के महान राजकुमार। ये धर्म के रक्षक हैं और सीता माता की खोज कर रहे हैं। हे राम, मैं भी पीड़ा में हूँ। मेरे ही बड़े भ्राता बाली ने मेरे राज्य और मेरी पत्नी छीन ली। सुग्रीव, अन्याय का अंत अवश्य होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा यदि तुम मेरी सहायता करोगे। To affirm their bond, Ram coronated Sugriv as the rightful king of Kishkinda. Sugriv, now filled with hope, led Rama to the entrance of Kishkinda, where he challenged Bali to a duel. Ram placed a garland on him so that he could tell the brother apart and devised a plan to kill Bali. बाली, आओ और मुझसे युद्ध करो। अब मैं अकेला नहीं हूँ। सुग्रीव, तू फिर से हारने आया है। तुझे कितनी बार हराना पड़ेगा? तुमने छिपकर वार क्यों किया? बाली, तूने अधर्म किया, अपने ही भाई पर अन्याय किया। तेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं समझ गया प्रभु। मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। Such a painful experience. It's like 2000 scorpions stinging you at the same time. And the point is that if at the time of death you can remember God, then you'll go to His abode. How do you remember God when 2000 scorpions are biting you? Next to impossible. When Ram shot Bali, he asked Ram, "Why did you kill me like this?" Ram said, "You had a bad intention. Nevertheless, if you say, I will make you alive. Should I?" Bali said, "Maharaj, impossible." Big yogis and munis, they
strive that in the last moment Ram should come from their lips, but they don't succeed. And my good fortune is that Ram himself is in front of me. Why should I miss this opportunity? I am not going to ask to be made alive, but you just remain here for a couple of seconds, and in your presence I'll depart from the world. After the Kishkinda Kanda ends with Sugriv's coronation, the rainy season arrives, delaying the search for Ma Sita. As soon as the skies clear, Shri Ram reminds Sugriv of his promise, and the Vanar army is assembled. Under the guidance of Jambavan, Angad, and Hanuman, search parties are sent in all directions. Hanuman, blessed with wisdom and strength, is chosen for the most crucial mission, to cross the vast ocean and find Ma Sita in Lanka. Before he departs, Shri Ram gives Hanuman his ring, a token for Sita to recognize. हे राम, अब मेरी सेना सीता माता की खोज में निकलेगी। हमें चारों दिशाओं में वानरों को भेजना होगा। At the shores of the ocean, Hanuman is reminded of his immense powers by Jambavan and starts his journey to Lanka. मैं लंका तक कैसे जाऊं? हनुमान, तुम वायु के पुत्र हो, क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए? क्या सचमुच मुझ में इतनी शक्ति है? हाँ, जाओ हनुमान, लंका उड़कर जाओ और माता सीता का पता लगाओ। श्री गुरु चरण। As Hanuman prepared for his great leap, he invoked Sri Rama's name and expanded to a colossal size. With a mighty push, he soared into the sky, crossing the vast ocean toward Lanka. On his journey, he faced several trials. First, the mountain Menaka rose from the ocean, offering him rest, but Hanuman politely declined, focused on his mission. Then Surasa, the mother of Nagas, tested his strength by trying to swallow him, but he outwitted her by changing his size. वानर, तुम कौन हो जो मेरे क्षेत्र में बिना अनुमति प्रवेश कर रहे हो? माँ, मैं श्री राम का दूत हूँ। मुझे माता सीता से मिलना है। मुझे जाने दे। नहीं, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब तुम मेरे मुख में समा जाओगे। Hanuman, ever wise, grew in size, but so did Sursa, widening her jaws to match him. Realizing her test, Hanuman suddenly shrunk to the size of a thumb, swiftly entered her mouth, and exited before she could react. माँ, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। अब मुझे जाने दीजिए। Sursa, pleased with his intelligence and devotion, blessed him and allowed him to continue his journey to Lanka. As Hanuman searched Lanka for Ma Sita, he came across Vibhishan, Ravan's noble brother. Unlike the other Rakshas, Vibhishan's palace radiated virtue and devotion, and sounds of Ram Bhajan came from the inside. Curious as to who in Lanka would be doing Ram Bhajan, Hanuman went inside to inquire. हे लंकेश के अनुज, कौन है आप? क्यों आपके मुख पर भक्ति की आभा है? हे महावीर, मैं विभीषण हूँ। मैं रावण का अनुज हूँ, परंतु मैं श्री राम का भक्त हूँ। मैं जानता हूँ कि रावण ने अधर्म किया है। हे विभीषण, आप धन्य हैं। प्रभु राम आपका सम्मान करेंगे। मुझे माता सीता का पता बताइए। माता सीता अशोक वाटिका में है।
वहां दुष्ट राक्षसियां उनकी पहरेदार हैं, सावधान रहिए। In the lush Ashok Vatika, where sorrow weighed heavy on the air, Ravan approached Ma Sita, his voice laced with both charm and menace. With arrogance, he praised his own power and wealth, trying to sway her from her devotion to Sri Ram. सीते, तुम कब तक इस दुख और अकेलेपन में रहोगी? हे दुष्ट, मेरे श्री राम सूर्य की भांति तेजस्वी हैं। तुम्हारे जैसे दुराचारी से उनकी तुलना भी पाप है। मुझे ठुकराने की मूर्खता मत करो। मैं त्रिलोक विजेता हूं, इंद्र को भी पराजित कर चुका हूं। रावण, तुम्हारे अंत का समय आ गया है। श्री राम आएंगे और तेरा विनाश निश्चित है। Disguised in a tiny form, Hanuman searched Ashoka Vatika under the moonlit sky until he finally saw Ma Sita, seated beneath a tree. जय श्री राम माता, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ। यह श्री राम की अंगूठी है माता। उन्होंने कहा है कि वे शीघ्र ही आकर आपको यहाँ से छुड़ा ले जाएंगे। क्या यह सत्य है? मेरे स्वामी ने तुम्हें भेजा है? मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूँ कि प्रभु श्री राम अभी तक जीवित हैं और वे शीघ्र ही आपको यहाँ से मुक्त कराने के लिए आएंगे। ये मुद्रिका श्री राम ने भेजी है। देखिए, ये वही मुद्रिका है जो गंगा किनारे आपने स्वयं श्री राम जी को दी थी। हनुमान, आप रघुवीर से कह दीजिए, यदि वो 2 मास के भीतर हमें यहाँ से मुक्त नहीं कराएंगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। माते, ऐसे विचार मन में कदापि ना लाएं। वत्स, तुम नहीं जानते कि हम यहाँ किस कष्ट में जी रहे हैं। हर एक क्षण हमारी आंखें प्रभु राम को ढूंढती रहती हैं। प्रभु राम स्वयं यहाँ आकर उस दुष्ट राक्षस को उसके घिनौने अपराध के लिए ऐसा कठोर दंड दें कि पुनः कोई भी पराई स्त्री के अपहरण का विचार भी लाने का दुस्साहस ना करे। प्रभु श्री राम आपको अवश्य लेने आएंगे। आप धैर्य रखिए। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। After finding Ma Sita, Hanuman gave her Sri Ram's ring, assuring her that Ram would soon rescue her. Before leaving, Hanuman wished to assess Lanka's strength, so he began destroying the Ashok Vatika, defeating Ravan's guards with ease. Captured intentionally, he was taken to Ravan's court, where he boldly warned the demon king of his impending downfall if he did not return Sita. Ravan, enraged by Hanuman's defiance, ordered his tail to be set on fire, unknowingly sealing Lanka's fate. Let us watch this memorable scene unfold. अरे वानर, तू कौन है और लंका में क्या करने आया है? लंकेश, मैं श्री राम का दूत हूँ और सीता माता की खोज में आया हूँ। यह तेरा अंतिम अवसर है। सीता माता को मुक्त कर दे। मूर्ख वानर, मैं तुझे मृत्यु दंड देता हूं। भैया, दूत को मारना अधर्म है। इसे दंड ही देना है तो कुछ और दे। ठीक है, इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। अब देखो लंका का विनाश। With his flaming tail, Hanuman leaped across Lanka, setting its golden towers and palaces ablaze, reducing Ravan's grand city to ashes and chaos. As the flames roared, he soared back across the ocean, carrying Sita's message to Sri Ram. भैया, अगर उनके सेना का एक वानर पूरे लंका का विनाश कर सकता है, तो सोचिए कि श्री राम की पूरी सेना क्या कर सकती है। भैया,
श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है, वे तो स्वयं भगवान हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सीता माता को आदर सहित श्री राम के पास लौटा दें। इसमें आपका और लंका का ही हित है। Hanuman returned to Sri Ram, bowed at his feet, and with great joy and devotion, delivered Ma Sita's message, assuring Ram that she awaited his rescue in Lanka. हनुमान, शीघ्र बताओ, क्या तुमने जानकी माता का दर्शन किया? प्रभु, आपकी कृपा से मैंने सीता माता को अशोक वाटिका में देखा। वे अत्यंत दुखी हैं, परंतु उनके हृदय में आपके प्रति अपार श्रद्धा है। क्या उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा? क्या वे सुरक्षित हैं? प्रभु, माता ने यह कहा है कि उन्होंने आपको अपनी जीवन शक्ति माना है। वे दिन रात आपके नाम का जाप करती हैं और आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। हनुमान, तुमने मेरे हृदय को संजीवनी दे दी। माता सीता की पीड़ा सुनकर मेरा धैर्य टूट रहा है। प्रभु, रावण अति अहंकारी है। लंका जलाने के बाद उसने मेरी शक्ति को समझ लिया होगा, परंतु वह फिर भी धर्म के मार्ग पर नहीं आएगा। अब विलंब नहीं, सेना संगठित करो, हम लंका के लिए प्रस्थान करेंगे। Upon receiving Ma Sita's message, Sri Ram declared war on Ravan and began preparing his mighty Vanar army. Under Sugriva's command, warriors gathered in thousands, ready to march toward Lanka. Reaching the shores of the vast ocean, Ram prayed to Samudra Dev for a way across. With divine guidance, Nal and Neel, the gifted Vanar engineers, began constructing the grand Setu bridge over the waters. Stone by stone, inscribed with Ram's name, the bridge floated, creating a path for the army to reach Lanka and reclaim Ma Sita. Let us watch this astonishing feat unfold in front of our eyes. हे समुद्र देव, हम आपके पास धर्म युद्ध के लिए मार्ग मांगने आए हैं। कृपया हमें मार्ग प्रदान करें। प्रभु, क्षमा करें, मैं अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकता, परंतु सेतु निर्माण के लिए नल नील को वरदान प्राप्त है। वे पत्थरों को जल में नहीं डूबने देंगे। तो चलो भाइयों, हम सेतु निर्माण आरंभ करें। जय श्री राम। जय श्री राम। With unwavering devotion, the Vanaras worked tirelessly, chanting Rama's name as the bridge stretched mile after mile. After days of effort, the mighty Ram Setu stood complete, paving the way for Rama and his army to march toward Lanka and the great battle ahead. प्रभु, सेतु निर्माण पूर्ण हुआ। अब लंका विजय का मार्ग खुल गया है। युद्ध से पहले हम भगवान शिव की पूजा करेंगे। यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमामि शंभुं पुरुषं पुराणं, नमामि सर्वज्ञमपारभावम्, नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि सर्वं शिरसा नमामि, नमामि देवं परमव्ययं तं, उमापतिं लोकगुरुं नमामि।
नमामि दारिद्र्यविदारणं तं नमामि रोगापहरं नमामि रोगापहरं नमामि शम्भो नमामि शम्भो नमामि शम्भो हर हर महादेव, उमापते हर हर महादेव। हे महादेव, इस युद्ध में हमें धर्म की विजय का आशीर्वाद दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Before the war began, Angad, son of Bali, was sent as Sri Ram's messenger to Ravan's court, offering him a final chance to surrender and return Ma Sita. Standing fearlessly before Ravan and his ministers, Angad warned of Lanka's destruction if he refused. When Ravan mocked him, Angad planted his foot firmly on the ground, challenging anyone to move it. Despite their efforts, none could, proving Ram's power was unshakable. Enraged, Ravan dismissed the warning, sealing his fate, and Angad returned to Ram, ready for war. Let us watch this scene unfold. सैनिकों, पकड़ो इस वानर को! ठहरो! अरे वानर, ये लंका का राजमहल है। यहाँ तुम्हारी क्या मजाल? मैं श्री राम का दूत हूँ, मुझे रोकने का साहस भी मत करना। लंका नरेश रावण, मैं श्री राम का दूत अंगद तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं, तुम्हें एक अंतिम अवसर देने आया हूँ। माता सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दो, अन्यथा विनाश निश्चित है। तुम जैसे तुच्छ वानर की इतनी हिम्मत कि मुझे धमकाए? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तीनों लोकों का विजेता हूँ? रावण, अहंकार विनाश का द्वार खोलता है। जब एक साधारण वानर तेरी लंका जला सकता है, तो सोच श्री राम की सेना क्या करेगी। पिताश्री, इसे सभा से बाहर निकालने का आदेश दे। नहीं, मैं इसे स्वयं पराजित करूंगा। रावण, यदि तू इतना शक्तिशाली है तो मेरे इस पैर को हिला के दिखा। रावण, सोच तू अगर मेरे पैर को ना हिला सका तो प्रभु श्री राम का पराक्रम क्या होगा। राम। The war is imminent and an anxious Ma Sita is waiting for Sri Ram's arrival. जनक नंदिनी, तुम मिथिला की राजकुमारी और अयोध्या के राजा राम की पत्नी हो, पर देखो तुम अब राक्षसों की नगरी में एक कैदी बनकर बैठी हो। लंकिनी, मैं कैदी नहीं हूँ। यह केवल देह का बंधन है, आत्मा का नहीं। मेरी आत्मा सदा स्वतंत्र है और मेरे स्वामी श्री राम जल्द ही आकर इस बंधन को तोड़ देंगे। तुम्हें अब भी विश्वास है कि तुम्हारा राम आएगा? रावण बलशाली है, उसने कितने राजाओं को हराया है। तुम्हारा राम अकेले लंका कैसे जीत सकता है? लंकिनी, अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित होती है। जिस दिन मैंने लंका की भूमि पर पहला कदम रखा, उसी दिन इस राज्य का अंत सुनिश्चित हो गया था। सीते, मैं इस लंका की रक्षक हूँ।
पर एक सच बताऊं, पहले जब कोई लंका में प्रवेश करता था तो मैं उसे तुरंत रोक देती थी, लेकिन उस दिन जब हनुमान इस नगरी में आए, मैंने उन्हें रोकना चाहा, पर जैसे ही उन्होंने मुझे स्पर्श किया, मेरी शक्ति क्षीण हो गई। मैं समझ गई कि अब राक्षसों के राज्य का अंत निकट है। रावण के अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया है, और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब उसका नाश निश्चित होता है। तो क्या यह सत्य है? क्या श्री राम ही लंका का अंत करेंगे? प्रभु श्री राम केवल लंका का अंत नहीं करेंगे, वे इस भूमि को पुनः धर्म से आलोकित करेंगे, और लंकिनी जब लंका धर्म की राह पर लौटेगी, तब तुम भी अपने सच्चे रूप में लौट आओगी। माता, मैं अब समझ गई कि धर्म सदा अमर रहता है। आपकी सहनशीलता और श्री राम की शक्ति निश्चित ही सत्य की विजय करवाएगी। मैं अब प्रतीक्षा करूंगी उस दिन की जब लंका फिर से पवित्र होगी। Mandodari pleaded with Ravan to return Ma Sita, warning him of Sri Ram's divine power and the impending destruction of Lanka. But Ravan's arrogance blinded him to reason. मेरे स्वामी, क्या यह युद्ध टल नहीं सकता? आपने संकेत नहीं देखे? आकाश में अशुभ शकुन हो रहे हैं, हवाएं बेचैन हैं, लंका आने वाले विनाश के भार से कांप रही है। संकेत और शगुन? मंदोदरी, तुम सदैव बुद्धिमान रही हो, पर यह भय तुम्हें शोभा नहीं देता। युद्ध मेरे लिए कोई नया विषय नहीं। मैंने देवों को पराजित किया है, महाबलियों को हराया है, और अयोध्या का वनवासी राजकुमार मेरे लिए मात्र एक साधारण पुरुष है। एक साधारण पुरुष जिसने आज तुम्हारे अहंकार को झुका दिया? एक साधारण पुरुष जिसने समुद्र पर पुल बांध दिया, जिसके नाम का स्मरण मात्र से निर्बल भी बलशाली हो जाते हैं। आपने सीता को हर लिया है स्वामी, क्या आपने अपनी लंका की शांति भी नहीं छीन ली? मैंने वही लिया जो मेरा था। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह सौंदर्य की देवी है, स्त्रियों में रत्न के समान है, वह लंका की महारानी बनने योग्य है। तो मैं क्या हूँ स्वामी? क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं? हर युद्ध में, हर विजय में तुम्हारे साथ रही हूँ, और फिर आज मेरे स्थान पर तुम्हारे हृदय में यह हट क्यों? सीता कभी तुम्हारी नहीं हो सकती, न हृदय से न आत्मा से। बस मंदोदरी, मैं अपने निर्णय से नहीं डगमगाऊंगा। तो फिर पति नहीं, आज राजा बनकर सुनो। लंका तुम्हारे शासन में फली फूली है, पर क्या तुम्हारे हट के कारण नष्ट हो जाएगी? राम अकेले नहीं हैं, उनकी सेना विशाल है, उनकी शक्तियां दिव्य है। क्या तुम अपने अहंकार के कारण अपनी ही लंका को संकट में डाल दोगे? मैं किसी मनुष्य या देवता से नहीं डरता। यदि लंका जलनी है तो वो मेरे गौरव के साथ जलेगी। मैं एक वनवासी राजकुमार के आगे नहीं झुकूंगा। और यदि तुम गिर गए स्वामी, तो मेरा क्या होगा? हमारे पुत्रों का, हमारी प्रजा का क्या होगा? राजा अपने मार्ग पे संदेह नहीं करता मंदोदरी।
ये युद्ध मेरा भाग्य है। The armies prepared for war and the horns blowed to signal the beginning of the end for Ravan. आज धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। युद्ध का प्रारंभ करो। Lakshman gets severely injured and the war is halted for the day. लक्ष्मण, तुम उठो मेरे भाई। लक्ष्मण मेरे भाई, जागो। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? प्रभु चिंता ना करें, मैं अभी हिमालय जाकर संजीवनी बूटी ले आऊंगा। हनुमान, तुम में अपार शक्ति है। तुम्हारे लिए यह कार्य असंभव नहीं है। बस स्मरण करो, तुम कौन हो। जय श्री राम। राम चरण सर सिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। चले पवन सुत शीश नवाई, राम सभा में आशा छाई। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मैं पूरे पर्वत को ही ले चलता हूँ। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। भैया लक्ष्मण, मेरे प्राण लौट आए। प्रभु यह सब आपकी कृपा है। अब हमें युद्ध में आगे बढ़ना होगा। In the final battle, Sri Ram and Ravan faced each other in a fierce duel, their divine weapons shaking the heavens. At last, Rama pierced Ravan's heart with a powerful arrow, ending his reign and restoring Dharma to the world.
माता, प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया है। अब आप स्वतंत्र हैं। क्या यह सत्य है हनुमान? हाँ माता, अब समय आ गया है कि आप अपने प्रिय श्री राम से मिलें। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव। बदली पवन बदली मन धारा, बुरी सोच का खेल है सारा। छूटा ना वनवास ये पूरा, मर्यादा का समर अधूरा। कैसे करे सीते, तुमने लंका में रहकर अपनी पवित्रता बनाए रखी या नहीं, यह तुम्हें सिद्ध करना होगा। प्रभु, क्या आपको मेरी निष्ठा पर संदेह है? सिया राम, सिया राम, सिया राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया सीते, यह संसार तुम्हारी निष्ठा और सतीत्व का प्रमाण है। अब हम अयोध्या लौट चलें। हे प्रभु, आपने अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की है। कृपा कर मुझे राजधर्म का पालन करने का आशीर्वाद दे। विभीषण, तुम सत्यवादी और धर्मपरायण हो। लंका का राज्य अब तुम्हारे हाथ में है। सदा न्याय और धर्म का पालन करना। जय श्री राम। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो। Sita, Ram, Lakshman, and Hanuman returned to Ayodhya, where the residents have waited 14 long years for their return. Let us witness the divine moment when the Lords return to their home.
आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे तू सीताराम। छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानः कडितरुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। कुंडल तिलक चारूदार अंग विभूषणम् आजान भुज शर चापधर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खर दल गंजनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय।